welcome back to my talks, and here I am with my second lecture on cell cycle and cell division. Last class we did mitosis, okay, and today I'm going to do meiosis. Now children, I'm going to tell you very easy trick how you are going to remember and study both the divisions. Yes, you must be thinking now two divisions and so many stages, how to remember. Meiosis, as the name suggests and as you study about, it will look difficult, but it's very easy. 2 lectures when it can be done, you can also do it. Okay, so meiosis, when we talk about children, meiosis 1 is little. Okay, meiosis 1 में prophase 1 is little to remember. Otherwise metaphase, anaphase. Metaphase में वही है that the sister chromatids are arranged at the equatorial plates. Okay, या homologous chromosomes. Homologous chromosomes मतलब for one particular factor a pair of chromosomes is responsible, and they are said to be homologous chromosomes, and one chromosome is made up of 2 chromatids. So 2 homologous chromosomes will have 4 chromatids. तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं, मतलब एक जो क्रोमोसोम है जिसके 2 क्रोमैटिड्स हैं उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं. ठीक है. सो दैट सो meiosis 1 में prophase 1 will have 5 stages and we are going to talk about it. Leptotin, zygotin, chitin, diplotin and dikinesis. Okay, leptotin, zygotin, chitin, diplotin and dikinesis. These are the 5 stages which combine and form prophase 1 of meiosis 1. Now more about you see when we talk about sexual reproduction, we say that variation is seen in sexual reproduction. Okay, while clones are formed as a result of asexual reproduction. तो आज आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है. Okay, and I told you that meiotic division, meiosis, takes place in gametic cells, in the formation of gametic cells. So let us directly come back over here. Okay, again children, if not subscribed, because I can understand I do upload the videos and you do not see it. If you have subscribed the channel, as soon as the video is uploaded, you get the notification and you can always see and prepare yourself. But then you are not watching it, it means you have not subscribed. So do subscribe it so that you can go through the videos. It will help you to prepare well. Okay, share and like it. So let me come over here. Just one thumbs up. I don't get satisfied. Do write a sentence because it really takes hard work to make videos for you. Okay. So meiosis 1, leptotin क्या होता है? जैसे वहां प्रोफेज में हुआ था that the chromosomes becomes compact, thick हो जाते हैं, short and thick. So leptotin में बस केवल वो compact होने लग जाते हैं. Okay, the chromosomes start becoming compact. Chromosomes, or you can say compaction of chromosomes takes place. Okay, and in zygotin क्या होगा? Pairing starts taking place. Pairing यानी pairing of homologous chromosomes. Pairing of homologous chromosomes, I told you that for one particular factor, suppose for my height, 2 chromosomes are responsible. For the color of my skin, 2 chromosomes are responsible. तो वो जो 2 chromosomes केवल height के लिए responsible है, उसको हम homologous chromosomes बोलेंगे. बाकी जो 2 chromosomes responsible है color of the skin के लिए, उसको हम homologous chromosomes बोलेंगे. तो सारे homologous chromosomes हैं. तो पहले पूरे chromosomes scattered थे, अब zygotin में पेयर होने लग जाते हैं. मतलब वो क्रोमोसोम्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, वो अपना पेयर बनाना शुरू कर देते हैं. सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द साइंटिफिक टर्म इज नोन एज synapsis. Okay, synapsis. synapsis, synapsis. Then we come to this chitin stage. Now chitin stage, children, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 2 homologous chromosomes में 4 tetrads होंगे. तो आपको समझ में आ गया ना, 4 tetrads, that is chromatids को tetrads बोल रहे हैं. तो tetrads formation, okay, and crossing in between tetrads. अब कैसे? Suppose ये, okay, it is like this, क्रॉसिंग ओवर. मतलब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये वाला एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये वाला, ठीक है. सपोज, और लेट मी से दिस इज 1 and 2, this is 3 and this is 4. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज 1 क्रोमोसोम. गॉट इट? दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है.
So it takes place between two non-sister chromatids, क्रॉसिंग ओवर मतलब एक इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन ट्रांसफर होता है, ओके और वही रिजल्ट है कि आपने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, तो दिस टेक्स प्लेस इन काइटिन स्टेज. काइटिन स्टेज में टेट्राड्स फॉर्मेशन होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा. यहां पे वन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट क्रॉसिंग ओवर, दैट इज recombinase enzyme. Recombinase enzyme and it is also responsible for recombination. ठीक है, recombination of characters, transfer of genetic characters. Okay, and here what happens, crossing over non-sister chromatids, क्योंकि इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन है, फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड्स है, थर्ड और फोर्थ एक होमोलोगस का है. तो क्रॉसिंग ओवर किसका हो रहा है, सेकंड और फोर्थ का, मतलब नॉन सिस्टर, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. गॉट इट? एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये दोनों क्रोमोसोम्स तो होमोलोगस ही है, दोनों एक ही फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो क्रोमैटिड्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है. Hope I am very, very clear. Children, see twice, thrice, 4 times if you are not able to understand. That is why I am telling you. Okay, so chitin. Now, chitin is a very, very, very important phase in this prophase 1, meiosis 1 में. Okay, during your medical exams also, medical entrance जब होता है, ओके उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो 11 से होता है. एंड दिस क्वेश्चन डेफिनेटली इज वेरी वेरी फेवरेट कि इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. ओके, और स्टेजेस आपको दिया रहेगा, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, काइटिन, डिप्लोटिन, तो आप कंफ्यूज हो गए. तो काइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है. और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्लोटिन. नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटिन. नाउ डिप्लोटिन में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब वो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहे थे ये दोनों अब सेपरेट होने लग जाएंगे. सेपरेट होने लग जाएंगे मतलब एक बिल्कुल ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, और ये इससे सेपरेट होके ये ऐसे और ये ऐसे, ये सेपरेशन मतलब सेंट्रोमियर सेपरेशन शुरू हो जाएगा. बट ये जो एक्स फॉर्मेशन है, ये जो एक्स फॉर्मेशन है, ये और ये फॉर्मेशन है, वो दैट इज नोन एज कियास्माटा फॉर्मेशन. कियास्माटा. तो यहां पे क्या होगा, डिप्लोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, ओके, बट कियास्माटा सेपरेट नहीं होगा. दिस इज नोन एज कियास्माटा. ठीक है, ये जो कियास्माटा है यहां से सेंट्रोमियर से सेपरेट हो गया है, बट ये जो क्रॉसिंग है वो सेपरेट नहीं हुआ है. ठीक है, सो कियास्माटा एक्सेप्ट कियास्माटा. और डायकाइनेसिस में क्या होगा कि धीरे धीरे जो कियास्माटा है उसको टर्मिनल कर देंगे, मतलब धीरे धीरे वो हट जाएगा, वो एक्स बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा या निकल जाएगा. सो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा टेक्स प्लेस एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स. जैसे प्रोफेज 1 में हुआ था, प्रोफेज में हुआ था माइटोसिस के, वैसे ही न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स ऑफ, so that it is completely ready to enter into metaphase 1. अब metaphase 1 में फिर से वही कि ये तो खत्म हो गया, कियास्माटा टर्मिनल हो गया या it is like disappears. Okay, then the homologous chromosomes are arranged at the equatorial plate. Okay, जैसे मेटाफेज 1 में हुआ था, जैसे मेटाफेज माइटोसिस का मेटाफेज में हुआ था, वैसे मेटाफेज 1 में भी होता है. दैट क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. एनाफेज में द स्पिंडल फाइबर्स ओके विल पुल ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द 2 पोल्स. ओके, उसमें से 2 क्रोमैटिड्स नॉर्थ पोल की तरफ पुल होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स साउथ पोल की तरफ पुल होते हैं, और टीलोफेज में वॉल फॉर्मेशन होगा. तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, साइटोकाइनेसिस हो जाता है. ठीक है, तो टीलोफेज 1 में साइटोकाइनेसिस होगा. जैसे साइटोकाइनेसिस होगा टीलोफेज 1 में, द सेल एंटर्स इनटू द सेकेंड डिवीजन, दैट इज मियोसिस 2 में एंटर हो जाता है. और जैसे मियोसिस 2 में एंटर होगा प्रोफेज 2, फिर से क्रोमोसोम्स जो पूरे उलझ जाते हैं. ओके, अगेन दे स्टार्ट बिकमिंग कॉम्पैक्ट एंड द न्यूक्लियोलस दैट डिसअपियर्स, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, मतलब वो पूरा फिर से प्रिपेयर होने लग जाता है. तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 कंप्लीट अ फोटोकॉपी ऑफ माइटोसिस. यही मैं बताना चाह रही थी कि इतना डिफिकल्ट नहीं है.
तो प्रोफेज 2 मेटाफेज में फिर से द होमोलोगस क्रोमोसोम्स की inside the equatorial plate, okay, and the spindle fiber is formed. स्पिंडल फाइबर ये वाला, ठीक है, यहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ओके, यहाँ पे सेंट्रियोल्स रहते हैं, ये सेंट्रोमियर है, ओके, सो हो जाएगा. एंड एनाफेज में इट विल बी पुल टुवर्ड्स द टू पोल्स एंड टीलोफेज में फिर से प्लेट्स फॉर्म हो जाएंगे. दैट इज वाई एक मेटाफेज 1 एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1, ओके, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे और फिर दिस एंटर्स इनटू मियोसिस 2. तो फिर से 2 सेल्स हैं. अब ऐसे डिवीजन हो गया, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे एक डॉटर सेल है. अब दिस विल अंडरगो डिवीजन एंड दिस विल ऑल्सो अंडरगो डिवीजन. तो यहां से डिवीजन होगा तो डेफिनेटली द रिजल्टेंट विल बी 4 डॉटर सेल्स. ओके, सो मियोसिस का रिजल्ट 4 डॉटर सेल्स है. इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, टेक्स प्लेस इन गैमेटिक सेल्स. Okay, and it helps in maintaining the chromosome number. How does it help in maintaining the chromosome number? Okay, जैसे हमारे normally somatic cells में कितने 23 pairs of chromosomes हैं, मतलब 46 chromosomes हैं. तो हमारे पूरे सेल्स में, हमारे पूरे सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं. लेकिन गैमेटिक सेल्स में ही क्यों मियोसिस होना है? बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर कैन बी रिड्यूस्ड. तो 2n जो है 2n कैन बी द कंप्लीट बोर्ड है. ओके, तो सोमैटिक सेल्स में हमारा 2n है और गैमेटिक सेल्स में आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम नंबर्स n हो जाते हैं. ठीक है, n 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. तो ये ओके एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस. जब मियोसिस में इट गिव्स राइज टू 4 डॉटर सेल्स. सो यहाँ पे और नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दैट व्हेन स्पर्म एंड एग मीट्स, ओके, मतलब n प्लस n, क्योंकि दोनों रिजल्ट है मियोटिक के, तो n प्लस n विल गिव 2n. तो फाइनली अब इसमें माइटोसिस होगा और हमारे पूरे सेल्स जो बॉडी के रहेंगे वो सारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द chromosome number of the body also. Okay, it is also known as a reductional division, takes place in gametic cells. Hope I'm very, very clear, children. Any doubts, do answer and let me know how it has helped you. Thank you for watching. Thank you, children.